بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک ٹو بروک فیلڈ کالج کلاسز. اور ہم اپنی بات کا آغاز وہیں سے شروع کریں گے, سردیوں کی چھٹیوں کے بعد, جہاں سے ہم نے یہ کام جو ہے وہ چھوڑا تھا. یعنی جہاں سے ہماری ڈسکشن, آپ کو پتا ہے ہم چیپٹر نمبر 4 اپنا جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھے, جس میں ہم بات کرنے والے تھے نارملائزیشن کی, کہ ڈیٹا بیس ٹیبلز کو کس طرح سے نارملائز کیا جائے گا. ویسے تو نارملائزیشن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم کر چکے ہوئے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ نارملائزیشن کس کو کہتے ہیں. میں ایک بار پھر دہراتا چلوں کہ یہ بنیادی طور پہ 6 سٹیجز پر مشتمل ایک مرحلہ وار طریقہ کار ہے, اور ہر سٹیج کی ایک مخصوص شرط ہوتی ہے جس پہ ہم نے اپنی ڈیٹا بیس کو اتارنا ہوتا ہے. تو اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں. آہستہ آہستہ ہم نارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں, لیکن کچھ باتیں جو اس سے پہلے ڈسکس کرنا ضروری ہیں ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اور آج کی بات جو ہے وہ ہے ڈیٹا بیس اناملیز. آپ کو پتا لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹیگریٹی کی بات کی تھی, اور ہم نے بات کی تھی کہ اینٹیٹی انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے, ریفرنشیل انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ اسی طرح سے یاد ہوگا. آج ہم اناملیز کی بات کریں گے. آسان سی بات ہے, آسانی سے آپ نے سمجھنی ہے. دیکھیں, ایررز ان دا ڈیٹا بیس جو ہے ان کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے آسان لفظوں میں, وہ اناملی ہے. یعنی اگر ڈیٹا بیس میں کوئی ایرر ہوگا, کوئی غلطی ہوگی, اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز اگر ہماری ڈیٹا بیس نہیں ہوگی تو ہم یہاں پہ اس کو ایرر نہیں کہیں گے. جیسے پروگرامنگ میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ پروگرامنگ میں اگر ایرر ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں, بگ. کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں, بگ. تو یہاں اسی طرح سے ڈیٹا بیس میں اگر ایرر ہوگا, غلطی ہوگی, خامی ہوگی, تو اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کریں گے اناملی. تو آج ہم پڑھیں گے کہ ڈیٹا بیس میں کس کس طرح کی اناملیز آ سکتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے آگے چل کے ہم نے اس کا ریموول سیکھنا ہے کہ ہم نے ان اناملیز کو دور کیسے کرنا ہے. تو اپنی بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بات آسان سی ہے, کہتے ہیں ڈیٹا بیس اناملیز are the problems in the relations that occur due to redundancy in the relations. عام طور پہ جو ڈیٹا بیس اناملیز ہیں, یعنی ڈیٹا بیس میں یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں, یہ جو ایررز ہوتے ہیں, ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ریڈنڈنسی ہے. اور ریڈنڈنسی پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ان نیسیسری ڈپلیکیشن آف ڈیٹا کو ہم ریڈنڈنسی کہتے ہیں. یعنی اگر ایک ڈیٹا بہت سارے فائلز میں, بہت سارے ٹیبلز میں ان نیسیسریلی ڈپلیکیٹڈ ہوگا تو اس کو ہم ریڈنڈنسی کہیں گے. کیونکہ ڈیٹا بیس کا جو جنرل کانسیپٹ ہے, جو عام طور پہ اس کا کانسیپٹ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ایک فائل کے اندر ایک پرٹیکولر ٹائپ آف ڈیٹا کو سٹور کریں گے اور باقی تمام لوکیشن سے اس کو ایکسس کریں گے ضرورت پڑنے پہ. باقی تمام کمپیوٹرز پہ اس کو ریپلیکیٹ یعنی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کی ایک فائل بنا لی ہے, اسٹوڈنٹ کا ایک ٹیبل بنا لیا, تو باقی سارے ٹیبلز پہ اگر آپ کو اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ایکسس کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا سورس وہی اسٹوڈنٹ فائل یعنی اسٹوڈنٹ ٹیبل ہی ہونا چاہیے. These anomalies affect the process of inserting, deleting and modifying data in the relations. تو وہ کہتا ہے اگر یہ اناملیز آپ کے ٹیبل میں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو پرابلم ہوگی نئے ڈیٹا کو انسرٹ کرنے میں, ڈیلیٹ کرنے میں, ماڈیفائی کرنے میں پہلے سے موجود ڈیٹا کو. Some important data may be lost if a relation is updated that contains database anomalies. اور کہتا ہے آپ کا امپورٹنٹ ڈیٹا لاس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے کمپیوٹر میں, آپ کی ڈیٹا بیس میں anomalies موجود رہیں. It is important to remove these anomalies in order to perform different processing on the relations without any problem. تو کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وداؤٹ اینی پرابلم اپنی ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے رہیں, اس میں آسانی سے ڈیٹا نیا انسرٹ ہوتا رہے, پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ اور اپڈیٹ ہوتا رہے, تو پھر ان اناملیز کو دور کرنا پڑے گا. کس طرح کی اناملیز آپ کی ڈیٹا بیس میں ہو سکتی ہیں, آئیے ہم اس کی بات کرتے ہیں. نمبر 1, انسرشن اناملی. آسان سی بات ہے, جب آپ اپنی ڈیٹا بیس میں نیا ڈیٹا انسرٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہوگا اور ایرر آ رہا ہوگا, تو اس کو ہم کون سی اناملی کہتے ہیں, اس کو انسرشن اناملی کہتے ہیں. انسرشن اناملی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے ہم ایگزامپلس کی بات آگے کرتے چلیں گے, لیکن ہم اس امر کو پہلے سمجھ لیں. کہتے ہیں insertion anomaly occurs when a new record is inserted in the relation. یہ ایرر تب آتا ہے جب آپ ایک نیا ریکارڈ ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں in this anomaly user cannot insert a fact about an entity until he has an additional fact about another entity.
तो इस किस्म की अनोमली में कहता है आमतौर पे एक यूजर डाटा एंटर नहीं कर पाता एक एंटिटी का जब तक किसी दूसरी एंटिटी का डाटा उससे रिलेटेड मौजूद ना हो। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखें, हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उसी से मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। हम ये बात कर रहे थे कि अगर दो टेबल हों, मैं देखता हूँ ये स्लाइड अगर हमारे पास ये मौजूद है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की स्लाइड हमारे पास मौजूद है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंसर्शन अनोमली क्या होती है। लुक, हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट टेबल है जो स्टूडेंट है और उसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक चाइल्ड टेबल है जिसका जो कि बुनियादी तौर पे मार्क्स का टेबल है, एग्जाम्स का टेबल आप इसको कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। लेकिन रोल नंबर हमने प्राइमरी की उठा के पेरेंट टेबल की यहाँ पे ऐड की है, किस लिए? एक रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि ये पता चले कि ये मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं। हम नेम को भी यहाँ पे शामिल कर सकते थे, लेकिन आमतौर पे मैंने आपको बताया था कि जब हम दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो प्राइमरी की बेस पे होता है, यानी जो पेरेंट टेबल होता है उसकी प्राइमरी की उठा के दूसरे टेबल में एज फॉरेन की शामिल की जाती है। तो यहाँ पे प्राइमरी की को यहाँ पे रोल नंबर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अब ये पता चल रहा है कि इंग्लिश में 52 मार्क्स रोल नंबर 1 के हैं, हालांकि रोल नंबर यहाँ मौजूद है, ये इस टेबल का डाटा नहीं है, सिर्फ इसको रेफरेंस के तौर पे कि ये पता चले कि सब्जेक्ट और मार्क्स किसके हैं यहाँ पे शामिल किया गया है। तो टेबल्स में रिलेशन इसी तरह से क्रिएट होते हैं। अब इंसर्शन एनॉमली कैसे हो सकती है? देखिए, आप रोल नंबर 4 यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ पे मौजूद है। बात को गौर से सुनिएगा, इन दोनों टेबल्स में रोल नंबर 4 मौजूद नहीं है, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर रोल नंबर 4 की एंट्री होगी तो वो पहले प्राइमरी टेबल में होगी, फिर जाके यहाँ पे उसकी इंसर्शन हो सकती है। यही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी थी कि अगर प्राइमरी की में डाटा मौजूद नहीं है तो जाहिर है कि फॉरेन की में भी वो डाटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने रोल नंबर 4 के एग्जाम का डाटा जो है वो स्टोर करना है इसमें, तो पहले रोल नंबर 4 का डाटा तो एंटर करें, फिर जाके उसके एग्जाम का डाटा जो है वो मेंटेन होगा। यही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी थी। तो देखें, आप यहाँ पे रोल नंबर 4 के एग्जाम का डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, तो डाटाबेस क्या, अगर यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं है प्राइमरी टेबल में, तो डाटाबेस क्या करेगा? एरर देगा, इंसर्ट नहीं हो पा रहा होगा डाटा। रोल नंबर 4 का डाटा एग्जाम में इंसर्ट नहीं हो पा रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको इंसर्शन अनोमली कहेंगे। अब आप वो बात समझें जो उसने वहां पे की है उस पैराए के अंदर, कि वो कहता है कि आप किसी टेबल में डाटा इंसर्ट नहीं कर पा रहे होंगे जब तक आपके पास एक एडिशनल फैक्ट किसी दूसरी एंटिटी का नहीं होगा। यानी जब तक आपके पास रोल नंबर 4 स्टूडेंट एंटिटी का नहीं होगा तो आप एग्जाम एंटिटी में भी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम एंटिटी में एंट्री ना होने की वजह स्टूडेंट एंटिटी में एडिशनल फैक्ट मौजूद होना ना है, यानी यहाँ पे अगर डाटा एक्सेस नहीं करता, हालांकि आप इस टेबल में एंट्री करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उस एंटिटी का डाटा मौजूद नहीं है रोल नंबर 4 का, तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो पा रहा। दिस इज इंसर्शन अनोमली जिसकी वो बात कर रहा था। और जाहिर है जब दो टेबल्स के दरमियान में आप डाटा रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो ये एरर अराइज हो सकता है। सो दैट वाज इंसर्शन अनोमली। इस टेबल से भी हम उसकी एग्जांपल देखेंगे अभी, और जो यहाँ एक बना हुआ है। डिलीशन अनोमली की बात करते हैं। अब आप बात समझ गए होंगे कि जब आप डाटा डिलीट करना चाह रहे होते हैं अपने टेबल से और वो नहीं हो पा रहा होता किसी एरर की बुनियाद पे, तो उसको हम डिलीशन अनोमली कहते हैं। लुक, कहते हैं डिलीशन अनोमली occurs when a record is deleted from a relation। जब आप एक टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे होंगे और वो नहीं होगा तो इसको डिलीशन अनोमली कहेंगे। In this anomaly, the deletion of fact about an entity automatically deletes the fact of another entity। क्या था, होता ये है कि हम एक टेबल से एक एंटिटी का डाटा जो है वो डिलीट करते हैं और दूसरे टेबल से हमारा इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो सकता है। ये भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की वजह से होता है। उसी टेबल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये डिलीशन अनोमली अकर हो सकती है। अब आप फर्ज करें कि रोल नंबर 1 का डाटा हम इस टेबल से यानी स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर देते हैं, तो क्या होगा? क्या यहाँ पे फिर वो डाटा एग्जिस्ट कर सकता है? यहाँ
एग्जाम टेबल में रोल नंबर 1 का डाटा फिर क्या रहेगा, ये मेरा आपसे सवाल है। भाई नहीं रहेगा, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में कि इन दोनों का डाटा यानी प्राइमरी की और फॉरेन की का डाटा क्या होता है, सेम होता है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि फॉरेन की वो होती है, फॉरेन की डेफिनेशन में ही मैंने आपको ये बात बताई थी, फॉरेन की इज अ वैल्यू whose values matches another table in a primary key. तो whose values matches primary key in another table, तो फॉरेन की वो होती है जिसकी वैल्यूज दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच करती हैं। ऐसे ही है, क्योंकि हमने उस प्राइमरी की को शामिल किया होता है एज फॉरेन की। अब अगर हम प्राइमरी की को डिलीट करेंगे, यानी रोल नंबर 1 अगर हम उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल से डिलीट करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से उसकी ये तीनों रोज जाती रहेंगी रोल नंबर 1 की। अब एग्जाम से भी उसका डाटा चला गया। यही डिलीशन अनोमली है जिसकी वो बात कर रहा था कि अगर आप एक एंटिटी का फैक्ट डिलीट करते हैं एक टेबल से, तो वो दूसरे टेबल से इंपॉर्टेंट डाटा आपका डिलीट कर सकता है। तो यही बात उसने की, कहता है डिलीशन ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट्स द फैक्ट अबाउट एन अदर एंटिटी। हालांकि दूसरे टेबल से डाटा जो है वो डिलीट हो गया, यानी दूसरी एंटिटी का डाटा जो है वो डिलीट होता रहा। मॉडिफिकेशन अनोमली कैसे आ सकती है? अब आप समझ गए कि अगर आप मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे डाटा को, और इस सूरत में अगर आपको एरर का सामना करना पड़ेगा, तो उसको हम मॉडिफिकेशन अनोमली कहेंगे इन द डेटाबेस। मॉडिफिकेशन अनोमली occurs when the record is updated in the relation। जब आप रिकॉर्ड्स को चेंज करने लगेंगे, अपडेट करने लगेंगे, इसको मॉडिफिकेशन अनोमली कहेंगे। कहता है इन दिस अनोमली the modification in the value of specific attribute requires modification in all records in which the value occurs। तो कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक वैल्यू को तब्दील करना चाह रहे होते हैं किसी एक टेबल में, लेकिन किसी दूसरे टेबल में वो बहुत सारी तब्दीलियां मांग रहा होता है। दूसरे टेबल में बहुत सारी तब्दीलियां उस एक तब्दीली को लाने के लिए करना पड़ती हैं। एग्जाम्पल्स अब हम इस टेबल से देखते हैं इन तीनों अनोमलीज की। टेबल ज़रा देख लें आप। टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी है, नेम है, सेल्समैन है और रीजन है। कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन और रीजन। अब हम देखते हैं कि इस टेबल में बुनियादी तौर पर क्या इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन अनोमलीज हो सकती हैं। इंसर्शन अनोमली की एग्जांपल कहता है सपोज अ न्यू सेल्समैन आबिद जॉइन्स द कंपनी। फर्ज करेंगे, कहता है आपके पास एक नया सेल्समैन आता है आबिद, जो आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है, एंड इट इज असाइन टू द नॉर्थ रीजन, और आप उसको स्टोर का नॉर्थ रीजन असाइन करते हैं। एक स्टोर है, सेल्स स्टोर है, उसमें नया सेल्समैन आया। हर सेल्समैन की अलग अलग जो रीजन्स हैं वो असाइंड हैं। किसी को ईस्ट मिली है, किसी को वेस्ट, यानी उस जगह पे वो सेल्स करेगा, उस जगह पे वो सेल्स करेगा। इस तरह का एक एनवायरनमेंट है। कहता है एक नया सेल्समैन आया आपके पास आबिद, उसको आपने नॉर्थ रीजन दिया। रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी एंटर्ड अंटिल अ कस्टमर इज आल्सो असाइंड टू हिम बिकॉज द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन इज कस्टमर आईडी। जरा गौर करें, नया सेल्समैन आया आबिद, हम उसका डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, रीजन भी उसको मिल गया नॉर्थ, ठीक है जी, यानी आबिद और नॉर्थ रीजन उसको मिलना है, ठीक है। और लेकिन वो कहता है कि उसकी एंट्री तब तक नहीं हो पाएगी जब तक उसको कस्टमर असाइन नहीं होता, यानी कस्टमर आईडी उसके साथ असाइन की जाएगी। क्यों? रीजन क्या है इसकी? हम ये पढ़ चुके हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की खाली नहीं हो सकती। पढ़ा है ना हमने, एक टेबल में जो प्राइमरी की होगी उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता डाटा एंट्री करते हुए। अब यहाँ सेल्समैन तो आ गया, उसको रीजन भी असाइन हो गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई कस्टमर जब तक नहीं आता और उसके साथ कस्टमर आईडी अटैच नहीं होती, तो उसकी एंट्री डाटा में इसमें डेटाबेस में हो ही नहीं पा रही, ठीक है। यानी फर्ज करें कि अगर पहला दिन उसके पास किसी कस्टमर ने कोई चीज़ नहीं खरीदी उससे, तो कस्टमर आईडी जो है वो जनरेट हुई नहीं, क्योंकि कस्टमर आईडी तब जनरेट होगी जब वो कुछ खरीदेगा। आप उसकी एंट्री करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा आपका सॉफ्टवेयर उस बिल के साथ। अब किसी ने उससे पहले दिन खरीदारी नहीं की, तो आप उसका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पा रहे उस सेल्समैन का यहाँ, ठीक है जी, क्योंकि उसके साथ कस्टमर आईडी नहीं है जो प्राइमरी की है। तो इसका मतलब कि पहले दिन जब आपके पास उस सेल्समैन का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उसकी सैलरी कहाँ से आपका सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा? तो दिस इज इंसर्शन अनोमली
हालांकि सेल्समैन का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाना चाहिए था, चाहे उसको कोई कस्टमर विजिट करे या ना करे। तो इस टेबल में आपके सामने ये एरर है, इंसर्शन अनोमली है। फिर हम डिलीशन अनोमली की बात करते हैं। तो सपोज द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर आईडी इज ऑफ कस्टमर आईडी 40 इज टू बी डिलीटेड। कहता फर्ज करें कि आप एक कस्टमर नंबर 40 जिसकी आईडी 40 थी उसका रिकॉर्ड अपनी डेटाबेस से डिलीट करना चाहते हैं। इट विल आल्सो डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्समैन खालिद हु इज असाइन्ड टू ईस्ट। लेकिन उससे सेल्समैन खालिद का भी रिकॉर्ड जाता रहेगा। हालांकि आप तो कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, सेल्समैन तो आपके पास काम कर रहा है। लुक, आप कस्टमर नंबर 40, कस्टमर आईडी है 40, वो कहता है इसका रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाह रहे हैं, दाऊद का। अब जब आप इसको डिलीट करेंगे, लिसन टू मी अगेन, इशू वही है कि कस्टमर आईडी 40 जब आप डिलीट करेंगे तो ये तो प्राइमरी की है, और जब प्राइमरी की डिलीट होगी तो बाकी डाटा भी रो में नहीं रह सकता, क्योंकि प्राइमरी की खाली नहीं हो सकती। तो आप कस्टमर आईडी 40 को डिलीट करेंगे तो खालिद ईस्ट भी जाता रहेगा, आपके सेल्समैन का रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। हालांकि सेल्समैन तो आपके पास काम कर रहा है और आपने तो सिर्फ कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहा था। तो गलत टेबल जब बनाएंगे तो उसमें इस तरह के एरर जो हैं वो आएंगे, और कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, हम उस पर बात नॉर्मलाइजेशन में करना चाह रहे हैं। तीसरा एरर, सपोज द सेल्समैन अहमद इज रीअसाइन्ड टू ईस्ट रीजन फ्रॉम साउथ। कहता फर्ज करें कि सेल्समैन अहमद जो है उसका रीजन बदल दिया हमने, साउथ से हटा के उसको ईस्ट दे दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक सेल्समैन का रीजन आपने बदल दिया, एक जगह से उसको हटा के दूसरी जगह ले गए। इट रिक्वायर्स टू अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स इन विच अहमद अपीयर्स, द डाटा विल बिकम इनकंसिस्टेंट इफ नॉट अपडेटेड इन ऑल रिकॉर्ड। अब जरा आप समझें कि आपने सिर्फ उसका रीजन चेंज किया, उसको आपने साउथ से हटा के ईस्ट दिया, लेकिन उसने जिन कस्टमर्स को डील किया था और जो कस्टमर आईडीज उसके साथ अटैच्ड थी, अब आपको उनका रीजन भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक सेल्समैन आपका एक रीजन से उठ के दूसरे रीजन में आ गया। तो वो सारे कस्टमर्स जिन्होंने साउथ रीजन से चीज खरीदी थी, अब क्योंकि सेल्समैन जिससे वो अटैच थे, क्योंकि प्राइमरी की अटैच है, तो सेल्समैन जिससे वो अटैच थे उन सब का रीजन बदलना पड़ेगा। यहाँ देखें आप, हम बात कर रहे हैं सेल्समैन किसकी, अहमद की। अब सेल्समैन अहमद जो है, देयर इज सेल्समैन अहमद, अब उसने कस्टमर 10 को भी डील किया, कस्टमर आईडी 10 यानी एसन को। अहमद ने कस्टमर आईडी 30 को भी डील किया है, और रीजन उसका साउथ था। चीज़ें कहाँ वो बेच रहा था, साउथ रीजन पे, ठीक है। इन दो रीजन से उसने दो कस्टमर्स को डील किया था, एक रीजन से उसने दो कस्टमर्स को डील किया था। अब अगर इसको हम साउथ से हटा के ईस्ट पे लेके जाते हैं, इसका अगर हम रीजन चेंज करते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये कस्टमर्स का रीजन भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक तब्दीली बहुत सारी तब्दीलियों का बायस बनेगी। यही हम मॉडिफिकेशन अनोमली में बात कर रहे थे। ये तो एक छोटा सा टेबल है, अगर ये बहुत बड़ा टेबल होता और अहमद बहुत सारे कस्टमर्स को डील कर चुका होता, तो आप बात खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी सारी तब्दीलियां उसमें हमें लाना पड़ती, जो मुश्किल हो जाती। तो गलत टेबल मेंटेन किया हुआ है, गलत टेबल इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि सेल्समैन का रिकॉर्ड अलग होना चाहिए था, कस्टमर का अलग होना चाहिए था, और फिर इसको कनेक्ट कर देना चाहिए था हमें रिलेशनशिप के जरिए। खैर, इस पर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा अगला टॉपिक जो है वो नॉर्मलाइजेशन ही आ रहा है, और हम बात करेंगे कि इस तरह की अनोमलीज को कैसे डाटाबेस में दूर किया जाता है। अपने सवाल मुझ तक पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।